اور اس کی شکرگزاری میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ خدا کے نام کو عزت و جلال دیا جا سکے. اور دوستو آج جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا جو تفسیری پیغامات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں بڑھتے ہوئے آج ہم چوتھے باب تک آن پہنچے. اور چوتھا باب جو اگر آپ جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن سروس میں شریک ہیں جو اسکرین دیکھ رہے ہیں تو اس پر آپ کو یہ دکھائی دے گا جو اس کا ٹائٹل ہے کہ Unveiling the Almighty's Throne، یعنی خدا کے تخت کو آج کس طور سے ہم اس کے ریولیشن کو پیش کرنے جا رہے ہیں، کس طور سے آج اس کے بھید کو ہم عیاں کرنے جا رہے ہیں. اس چیز پر ہم تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں گے. اور یاد رہے کہ خدا کے کلام کا یہ حصہ جو ہے انتہائی مشکل ہے، اور اس پر جب ہم غور و خوض کریں گے تو ہمیں بڑی توجہ سے خدا کے کلام پر اپنی توجہ لگائے رکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس چیپٹر کا، آج کے اس پیغام کا یہ پہلا حصہ ہے. اور آج ہم تقریباً چوتھی اور پانچویں آیات تک خدا کے زندہ پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی افراد بھی ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن سروس کا حصہ ہیں ان سبوں کے لیے بھی میں خدا کی برکت اور شفقت کا ہاتھ چاہتا ہوں. اور خاص طور پر مسٹر منتظر فضل کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ اس آن لائن سروس کا حصہ ہیں. اور دوستو ہم جب خدا کے کلام کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج یاد رکھیے کہ میں کوئی ایسا پیغام آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھنے جا رہا کہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑے ہی اچھے اور چنے ہوئے الفاظ کی مالا میں پرویا گیا ہے، بلکہ آج میں آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خداوند کے اس تخت کی جانب دلانا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے چوتھے باب کی طرف اس میں نظر آتا ہے. اور آج جب ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے کہ آج میں ذاتی طور پر یہ محسوس کر رہا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ خداوند کی اس شکرگزاری میں مخمور ہے کہ آج ہم خداوند کے اس بڑے بھید کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے صرف اس کی حکمت اور اس کی دانائی کے وسیلے سے. کیونکہ اگر اس کی حکمت اور دانائی نہیں ہے تو یقیناً ہم خدا کے کلام کے حصے کو کبھی جان نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں مافوق الفطرت ہیں کہ جن کا بیان کرنا یقیناً یہ بہت ڈیفیکلٹ بات ہے. اور دوستو جس وقت ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں تو ان میں کیا باتیں درج کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر موجود ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگ کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا. اور اگر پہلی اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت بڑی ہی میننگ فل ہے، اور یہ میننگ فل اس لیے ہے کہ جو چیزیں ہم نے ابھی تک دوسرے اور تیسرے ابواب میں یعنی 7 کلیسیاؤں کے ساتھ یسوع مسیح کا جو کلام ہے اس کو ہم نے جو دیکھا تھا اور اس کو سمجھا تھا، یہ اس کلام کا حصہ اور اس کا تسلسل جو ہے وہ ہمیں چوتھے باب میں دکھائی دیتا ہے. یعنی دوسرے اور تیسرے چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ 7 کلیسیاؤں سے مخاطب تھے، اور چوتھے باب میں وہی تسلسل آگے چلا ہے. اور خداوند یوحنا سے جو زمین پر تھا اور جو زمین پر کی تمام تر کلیسیاؤں کو دیکھ رہا تھا اور زمین پر کی کلیسیاؤں کے لیے پیغامات جو ہیں وہ رسیو کر رہا تھا، اور اب آ کر خداوند جو ہیں اسی تسلسل کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی جانب لے جاتے ہیں. اور آسمان کی جانب جب لے کر جاتے ہیں تو پہلے خداوند یسوع مسیح خود آسمان پر موجود ہیں، اور یوحنا کو کیا بات کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا. اور دوستو پہلے یوحنا عارف کو جو ہے وہ زمین پر کے بھید دکھائے گئے، اور اب جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اوپر آسمان پر آ جا، کیونکہ آسمان پر کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ خود لکھا ہے کہ میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے فوراً یوحنا کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے.
اور دوستو یہاں پر یہ بڑے ہی توجہ طلب امور ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی دیر جو ہے جس پر ہم زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے اس دروازے کو کہاں کھولا گیا ہے. کیا یہ دروازہ یوحنا اس قرۂ ہوائی پر کھلا ہوا دیکھتا ہے یا یہ دوسرا آسمان جہاں پر اجرام فلکی ہیں ان میں کھلا ہوا دیکھتا ہے, یا یہ تیسرا آسمان ہے بائبل مقدس کے مطابق کہ جہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے. اور خدا بے شک تیسرے آسمان پر جہاں خدا کا تخت لگا ہے وہاں پر سے کا دروازہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے اختیار اور فضل کے وسیلے سے کھولا گیا ہے. اور بے شک خدا یسوع مسیح کا وہ قول آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور اسی طرح سے جس طور سے خدا یسوع نے یہ بات کہی کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو, تو دوستو آج جہاں پر ہمارا نجات دہندہ ہے اس نے اس آسمانی مقام پر اپنی اتھارٹی کو اور اپنے جلال کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کے دروازے اپنے نام لیواؤں کے لیے کھول دیے ہیں, کیونکہ جہاں وہ ہے ہم بھی ہیں. اور اس لیے یوحنا کو جو ہے وہ وہاں پر سب سے پہلے یوحنا کیا دیکھتا ہے کہ وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے. اور بائبل مقدس کو اگر ہم بڑے غور سے پڑھیں تو یاد رکھیے کہ تقریباً 3 ایسے افراد ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کے حوالے سے جو ہے وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 3 افراد جو ہیں وہ کون تھے یوحنا کے علاوہ جنہوں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا؟ نہیں, ایک ہی جواب درست آیا ابھی تک. دوستو سب سے پہلے دانیل. اور اگر آپ بائبل مقدس آپ کے ہاتھ میں ہے تو میرے ساتھ اگر آپ دانیل نبی کے صحیفے کے 7ویں باب کو کھول کے رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس باب میں بھی سمجھ آتی چلی جائیں گی. دانیل جو ہے وہ سب وہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. اس کے بعد سٹیفنس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. اور سٹیفنس نے کب آسمان کو کھلا ہوا دیکھا؟ کہ جب سٹیفنس کو یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہوئے سنسار کیا جا رہا تھا. اور اس وقت خدا کے کلام میں اگر اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دکھائی دے گا کہ سٹیفنس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. اور وہ کیا دیکھا اس نے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سٹیفنس کی روح کو رسید کرنے کے لیے موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے مقدس پولوس رسول نے جو ہے انہوں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. دوسرے گرنتھیوں کے خط کو اگر اس کے 12ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ شہادت نصیب ہوگی. اس بات کو آپ پڑھ سکیں گے کہ کس طرح سے مقدس پولوس رسول نے بھی آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. اور اسی طرح چوتھا شخص جو ہے وہ مقدس یوحنا عارف ہے کہ جس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا. اور جس وقت وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کو آواز آتی ہے کہ یہاں اوپر آ جا. اور جس طرح سے لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں کہ سب باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جاؤ. جب مقدس پولوس رسول جو ہیں انہوں نے آسمان کو کھلے ہوئے پایا اور کھلے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا بات کہی کہ انہوں نے جو کچھ وہاں پر باتیں سنی, جو آوازیں سنی, اور مقدس پولوس رسول نے کہا کہ انسان کو ان کا بیان کرنا روا نہیں, انسان کو ان کا تحریر کرنا روا نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ آئینے میں ابھی ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن جب ہم اس کے حضور میں پہنچائے جائیں گے تو سب چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے. اور میرے بھائی میری بہن, جب ہم اس کلام کے اس حصے پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا یہ حکم جو اس کو صادر ہوتا ہے, اور حکم کیا ہے کہ یہاں اوپر آ جا, تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اور اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید یوحنا جو ہے وہ وہاں اوپر جا کر وہیں رہ گئے, اور بلکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ خداوند مستقبل میں ہونے والے تمام واقعات سے یوحنا کو متعارف کروانا چاہتے ہیں. اور کیا لکھا ہے کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے. اور دوستو یوحنا کو زمین سے آسمان تک کا سفر کرنے میں
कितने नूरी साल लग गए होंगे? क्या ख्याल है? बहुत दफा लोग इस बात पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद फरिश्तगान को आते आते आसमान से बहुत टाइम चाहिए होता है, या अगर खुदा किसी की रूह को अपने पास ऊपर आने का फजल अता फरमाए तो पता नहीं वो कितनी देर में पहुंचेगी। तो भाई ये सब कुछ चुटकी बजाने में होता है, ये सब कुछ इंस्टेंट होता है। इसमें कोई नूरी साल या इसमें कोई लीप के साल या दूसरे साल नहीं लगते, बल्कि क्या है कि खुदा हुक्म देता है, खुदा के मुंह से जो कलाम जारी होता है वो कलाम ही आनन फानन सब चीजों को तख्लीक करता और सब चीजों को नया बना देता है। ये खुदा के कलाम की कुदरत है। और जिस वक्त खुदावंद यीशु की ज़बान मुबारक से ये बात अयां होती है कि यहाँ ऊपर आ जा, तो यूहन्ना को ऊपर जाते हुए कोई सैकड़ों बरस नहीं लगे थे, बल्कि आनन फानन चुटकी बजाने में यूहन्ना आसमान पर है। और क्या देखता है कि वहां पर एक तख्त लगा है, और तख्त जो है उस पर कोई बैठा है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि वो फौरन रूह में आ गया। अब ये मैं नहीं जानता कि जब वो रूह में आया तो वो बदनी तौर पर आसमान पर उठाया गया है, या उसको उसकी सिर्फ रूह जो है उसको आसमान पर जाने का शर्फ हासिल होता है। और गर्ज के जैसे भी है, याद रखिए कि रूह में आने से मुराद है कि ये मालूम नहीं कि वो जिस्म समेत उठाया गया या जिस्म के बगैर उठाया गया, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना आरिफ पहला शख्स नहीं है कि जो रूह में आसमान तक रसाई हासिल करता है, बल्कि यहाँ पर बाइबल मुकद्दस की रूह से 3 ऐसे नाम हम देख सकते हैं कि जिनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है कि जो आसमान पर उठाए गए रूह में। और वो 3 लोग कौन हैं? कि याद रखिए कि मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, मुकद्दस पौलुस रसूल, और तीसरा शख्स पुराने अहदनामे का हिजकिय्याह नबी। और ये 3 वो लोग हैं जिन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो आसमान पर रूह में उठाए जाएं। और वो कौन सा नबी था? जो आग के रथ में सवार होकर एलिया, वो तो आसमान पर जिंदा उठा लिया गया है ना, ऐसे ही हुआ। लेकिन रूह में उठाए जाने का मतलब जो है वो यकसर जो है वो फर्क गिरदाना जाता है। और याद रखिए कि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आसमान पर पहुंचकर पहली चीज जो सबसे पहले यूहन्ना ने देखी वो क्या है कि एक तख्त लगा हुआ है, और जमीन पर जो चीज यूहन्ना को सबसे पहले दिखाई गई थी वो क्या थी कि 7 चिरागदान है ना, जो 7 कलीसियाओं की बाबत। लेकिन अब जब वो आसमान पर उठाया गया है तो उस वक्त जो समा है, जो सीन है, जो नजारा है वो अक्सर तब्दील होता है। और वो जब तब्दील होता है तो क्या देखता है कि आसमान पर एक तख्त लगा हुआ है और जिस पर कोई विराजमान है, जिस पर कोई बैठा हुआ है। और याद रखें कि यहाँ पर जब खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदावन के कलाम के रूह से जो शख्स वहां पर बैठा है उसकी डिस्क्रिप्शन यूहन्ना क्या बात किस तरह से बयान करता है। और जो उस पर बैठा हुआ है वो संगे यशब और अकील सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द किसी एक धनक मालूम होती है। और दोस्तों ये खुदा बाप की वो डिस्क्रिप्शन बयान करता है जिसका जिक्र जो है हमें इस वक्त खुदा के कलाम में हम देख सकते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, उसने अपना आप जो है वो कभी अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत जो है वो कभी किसी पर अयान नहीं की। और इसलिए यूहन्ना जब खुदा बाप को देख रहा है, उसके तख्त को देखता है, तो वो उसकी ज़ाहिरी शक्ल और शबाहत का बयान करने से कासिर है, क्योंकि वो इस तरह से नूर से मुलब्बस है। वो नूर इस कदर ज्यादा है कि कोई शख्स खुदा के चेहरे की ताब नहीं ला सकता। और अगर आपको याद हो तो मुकद्दस मूसा पर जब खुदावन हूरम के पहाड़ पर जाहिर हुआ तो तब भी वो आग की जलती हुई झाड़ी के हवाले से और आग और धुएं के बादल में उस पर जाहिर हुआ, और मूसा भी खुदा के जलाल को देख ना पाया। और यहाँ पर जो तख्त लगने की बात है और तख्त लगने के हवाले से अगर हम ज़बूर नंबर 9 को देखें तो ज़बूर 9 की 7वीं आयत में क्या बात तहरीर की गई है, क्योंकि खुदावन
अब तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है। और दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं और ये ज़बूर भी गाते हैं, कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बचाया। दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाई या रब। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात याद रखने की जरूरत है। अगली आयत मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आप जानते हैं। और यहाँ पर जो तख्त लगाया गया है वो खुदा के फजल का तख्त नहीं, बल्कि वो दुनिया की अदालत का तख्त है। और आज ये जो दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, याद रखिए ये हमारे लिए इंतहाई ब्लेसिंग का टाइम है। आज तो खुदा का तख्त फजल का तख्त है, लेकिन जिस रोज वो संगे यश और हकीक सा मालूम होगा, तो फिर याद रखिए कि फजल का जमाना हमसे जुदा कर दिया जाएगा और फिर हम अदालत के लिए उसके सामने हाजिर होंगे। और हमें डरना चाहिए उस वक्त से कि जब हमें अदालत के तख्त के सामने हाजिर किया जाएगा। आज वक्त है उसके फजल को, उसकी ग्रेस को, उसकी ग्लोरी को रिसीव करने का। लेकिन आज अगर हमने उसके फजल और उसकी ग्लोरी को रिसीव ना किया, तो जब वो संगे यश और हकीक सा मालूम होने वाला कोई शख्स जो तख्त पर बैठा है, जब हम उसके सामने हाजिर होंगे, तो फिर हमारे पास कोई और मौका नहीं रहेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को समझें कि जिस वक्त खुदा के कलाम में ये बात दर्ज की गई कि जो तख्त उसने देखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और किस तरह से उस तख्त का बयान किया गया है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यश और हकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। और ये इंतहाई दिलचस्प अमूर है जो यहाँ पर बयान किए गए। यूहन्ना अरब जब खुदा के तख्त को देख रहा है, तो उसको कोई शख्स बैठा हुआ वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसा शख्स के जिसके शायद 2 हाथ होंगे या 2 टांगे होंगी या उसका कोई इंसानी चेहरा होगा, बल्कि जो कुछ उसने देखा वो उस नूर के उस सारे धनक को और उस ह्योले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसको समझ नहीं आ रही कि तख्त पर हकीकत में बैठा कौन है। और अगर आप अल्फाज पर गौर करें तो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। और लिखा है जो उस पर बैठा है वो संगे यश और हकीक सा क्या होता है, मालूम होता है। और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसको फील हो रहा है, जो कुछ वो देख रहा है, रियल व्यू, एक्चुअल व्यू। कौन है तख्त पर, उसकी शक्ल शबाहत क्या है, उसका चेहरा क्या है, उसकी जिसामत क्या है, वो कौन सी मखलूक है, वो कौन बैठा है, ये यूहन्ना नहीं जान पा रहा, बल्कि वो तहरीर करता है कि मालूम होता है। और जब मालूम होने की बात है तो वो इसी वजह से जो कुछ देख रहा है उन तमाम चीजों का बयान कैसे करता है कि जो पर्सनैलिटी उस तख्त पर बैठी हुई है उसके हवाले से वो कहता है कि वो संगे ये सब सा मालूम होता है। और फिर वो उसको हकीक से तशबीह देता है, और फिर उसके गिर्द जो नूर का ह्योला है उसको वो किससे तशबीह देता है कि वो धनक सी जो मालूम होती है वो सब्ज कलर की यानी ज़मुर्द की से रंग की है। और यहाँ पर रंगों का चुनाव जो है ये अपने अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस वक्त वो रंगों का चुनाव करके इस बात को बयान कर रहा है, तो याद रखिए कि मुकाशफा की किताब में अदाब और रंगों का बड़ा ही अहम अमल दखल है, और इनके बगैर हम मुकाशफा की किताब को समझने से यकसर कासिर रहते हैं। और जिस वक्त वो इन 2 बुनियादी पत्थरों से उस शख्सियत को तशबीह देता है जो तख्त पर विराजमान है, जो तख्त पर बैठी हुई है, तो संगे यशब के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, संगे यश जो कि जस पर अंग्रेजी में कहलाता है, और संगे यश जो है वो क्या है कि हकीकत में अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो संगे यश जो है वो सरदार कायम के सीना बंद पर मौजूद उन 12 पत्थरों
को जो नस्ब किया जाता था, जो उसकी ब्रेस्ट प्लेट होती थी, जो उसके सीने पर लगे 12 पत्थर जो कि बनी इस्राएल के 12 कबीलों की रमाजी करते थे, उनमें सबसे छोटे कबीले का जो नुमाइंदा पत्थर तस्वीर किया जाता था, यानी 12वां पत्थर वो कौन सा था? संगे यशब। और संगे यशब जो बिन्यामीन के कबीले का मजहर है, उसको सबसे पहले वो खुदा की जात को किसके साथ तस्वीर देता है कि संगे यशब सा मालूम होता है, यानी जस्पर दिखाई देता है। और जिस वक्त वो, अगर हम खुदा के कलाम ही के हवाले से संगे यशब की खुसूसियत को समझने की कोशिश करें तो याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है कि संगे यशब जो है, यानी जो जस्पर है, वो इंतहाई शफाफ और ब्लोर की मानंद जो है वो साफ दिखाई देता है। ऐसा पत्थर कि जिसके आर पार दिखाई दे सकता है, जो ब्लोर की मानंद है, जो इंतहाई चमकीला है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूह से और इब्रानी जो मतन है उसको हम देखें तो जस्पर के लिए जो लफ्ज जो बाइबल मुकद्दस में या इसके जो संगे यशब के लिए इस्तेमाल हुआ वो क्या है कि उसके पाशफा। और पाशफा क्या, अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो पाशफा का मतलब भी क्या है कि जस्पर यानी जो ब्लोर की मानंद चमकीला और साफ हो। और जिस वक्त वो खुदा की जात को देख रहा है जो कि इस बात की नुमाइंदा है कि वो पाकीज़गी का मजहर है, उसमें तमाम जहान की कायनात की पाकीज़गी और रास्तबाजी उसमें समो दी गई है। और दोस्तों याद रखिए कि वो खुदा की जात के जिससे जहान की और कायनात की पाकीज़गी जारी होती है, जिससे रास्तबाजी जाहिर होती है। और यहाँ पर ये खुदा के जो बहुत सारे उलमा हैं वो इस बात को भी बयान करते हैं कि ये जो चीज है ये खुदा के रहम को भी जाहिर करती है। और मेरे भाई मेरी बहन यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए। और दूसरा जो पत्थर है वो सार्डियस है, यानी अकीक। और अगर हम अकीक को देखें तो अकीक जो है वो सुर्ख रंग का पत्थर है। कितने लोग हैं जिन्होंने अकीक देखा है, जो एक्चुअल अकीक होता है? किसी ने नहीं देखी? और सार्डियस यानी अकीक। और अकीक जो है ये सबसे उन 12 पत्थरों में जो सरदार काहन के सीने पर लगे हुए थे, जो नस्ब होते थे उसके उस सीना बर में, उनमें सबसे पहला पत्थर जो था वो कौन सा था? अकीक। और अकीक कौन से कबीले को जाहिर करता है? वो रूबन के कबीले को जाहिर करता है। और खुदा का नाम, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर कि खुदा का नाम क्या बयान किया गया दानियल के सहीफे के 7वें बाब में, कि उसके बारे में दानियल जो खुदा की जात को तख्त पर बैठे हुए देखता है तो वो उसको क्या नाम देता है कि वो कदीमुल अय्याम है, जो जाने कब से है और कब तक रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह के जो अलकाब दिए गए उसको, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम मुकाशफा में बयान किए गए, उनमें यीशु मसीह का एक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि यीशु ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था लेकिन अब जी उठा हूं। और मेरे भाई मेरी बहन इसको समझने की बात है कि एक तो वो आगाज का पत्थर देखता है और दूसरा पत्थर वो इख्तिताम वाला देख रहा है। एक पत्थर वो यशब सा देख रहा है और दूसरा पत्थर क्या देखता है कि वो सार्डियस है, यानी अकीक, कि वो जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो मर गया था वो जी उठा है। वो यूहन्ना को ये सारे मनाजिर दिखा रहा है। और खुदा की जात जो कि रहम और फजल की मुंह बोलती हुई तस्वीर के तौर पर भी वो देखता है। लेकिन जब हम सुर्ख रंग के उस अकीक को समझने की कोशिश करें तो ये खुदा की अदालत का बयान भी है, ये खुदा का वो तसव्वुर भी है, ये खुदा की वो डिमांड भी है कि गुनाह जो है यकीनन उसको खत्म करने के लिए खून का बहाया जाना इंतहाई जरूरी है। और याद रखिए कि खुदा ने जो कुर्बानी डिमांड की और खुदा ने जिस कुर्बानी का अरेंज मेरे और आपके गुनाहों के लिए किया, ये उस बात का मजहर है कि सुर्ख रंग जो है ये खुदा की अदालत का बयान है।
اور جہاں پر وہ رحیم و کریم ہے آج کے دور میں، یاد رکھیے جہاں پر وہ فضل کا سرچشمہ ہے آج کے دور میں، اگر ہم نے اس کے فضل کو رسیو نہ کیا، اگر ہم نے آج اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کیا، تو آج یہ سب سا معلوم ہونے والا خدا کل عقیق کی طرح سرخ نظر آئے گا، اور جس وقت وہ عقیق کی طرح سرخ دکھائی دے گا، یعنی اپنی عدالت کے لیے تخت لگائے گا، تو ہم میں سے کون ہے جو اس کا سامنا کر سکے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کے سامنے حاضر ہونے پر فخر محسوس کر سکے؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکے گا؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، اس بات کو سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ اگر آج بھی ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہ ٹھہرایا، اگر آج بھی ہم نے اپنی بری روشوں سے توبہ نہ کی، تو پھر ڈریں اس لمحے سے کہ جب خدا کے نتنوں سے دھواں نکلنا شروع ہو، ڈریں اس مقام سے کہ جب وہ اپنے غضب کی روح میں سرخ ہوگا، اور جس وقت وہ عقیق سا معلوم ہونے والا خدا جو مقدس یوحنا اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں پہلے ہی آج سے 2000 سال قبل یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹیز اور کس طرح کی خصوصیات اپنے اندر سموئے ہوئے، اور آج ہم صرف خدا کا فضل اور اس کا رحم ہی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے غضب کی تاب لانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، اور تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی کہ وہ دھنک ہے جو اس کے تخت کے پیچھے دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر ہم عام جو رینبو دیکھتے ہیں اس میں کتنے کلرز ہوتے ہیں؟ بنفشی، جامنی، نیلا، سبز، زرد، سنترا رنگ اور پھر سرخ رنگ۔ اور جس وقت ان 7 رنگوں پر مبنی ہم دھنک دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو دھنک دکھائی دے رہی ہے وہ 7 رنگوں پر مبنی نہیں، بلکہ وہ سبز رنگ کی دھنک کو دیکھتا ہے۔ کلرز تو اس کو ڈیفینیٹلی دکھائی دے رہے ہوں گے، لیکن جس کلر نے وہ سب رنگوں کو ماند کر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ سبز رنگ۔ اور زمرد جو ہے، اگر آپ اس زمرد کا جو پتھر ہے اس کو دیکھیں تو زمرد مختلف رنگوں میں ملتا ہے، لیکن عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جو سبز رنگ کا زمرد ہوتا ہے وہ باقی سب پتھروں سے زیادہ قیمتی اور ویلیوبل تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں جو بات درج کی گئی وہ کیا ہے، اور اس پر ذرا غور کریں کہ کیا الفاظ تحریر ہوئے ہیں خدا کے کلام میں، اور 4 باب میں کیا لکھا ہے؟ اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ اور یوحنا نے جب تخت اور اس پر بیٹھنے والے کو دیکھا تو اس تخت کے گرد زمرد کی ایک دھنک دکھائی دی، اور دھنک سے مراد ہم سب جانتے ہیں کہ قوس و قزح، اور قوس و قزح جو ہے وہ خدا کا وعدہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ جب خدا نے نوح کے زمانے میں پیدائش کی کتاب کے حوالے سے اس جہان کو پانی کے طوفان سے ختم کیا، تو خدا نے پھر انسان کے ساتھ ایک وعدہ کیا، نوح کے ساتھ ایک وعدہ اس نے کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ میں پھر دوبارہ اب پانی سے اس زمین کو برباد نہیں کروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اور آج بھی جب ہم بارش کے بعد مطلع صاف دکھائی دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں دھنک جو ہے وہ آسمان پر دکھائی دیتی ہے۔ اور دوستو، یہ خدا کے وعدے کا مظہر ہے، یہ خدا کے وعدے کا نشان ہے کہ جو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو کہ اس دھنک کے وسیلے سے ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ اب کی دفعہ وہ پانی سے اس دنیا کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ اب کی دفعہ معاملات کچھ فرق ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو زمرد کی سی دھنک جو ہے وہ اس کو دکھائی دے رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ بڑا ہی اہم کچھ نہ کچھ ایسا بھید تو ضرور موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دھنک جو سبز رنگ کی ہے، اور سبز رنگ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق زمین پر موجود ان جو درخت ہیں، جو نباتات اور حیات ہے، اس کا مظہر تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی پودے، پیڑ اور درخت اور یہ ہریالی
کہ جو زندگی کی علامت ہے. اور اگر آپ وہ موجودہ اور معلوم سیاروں کو دیکھیں گے کہ جو اس وقت مختلف طریقے سے نظام شمسی کا حصہ ہے، کہ جس میں مارس ہے، جس میں پلوٹو ہے، جس میں وینس ہے، جس میں اور دوسرے باقی سیارے موجود ہیں، کسی سیارے پر کسی قسم کی کوئی حیات اور کوئی سبزہ موجود نہیں ہے سوائے زمین کے. اور جس وقت ہم اس سبز رنگ کی اس دھنک کو دیکھتے ہیں تو یہ سبز رنگ کی دھنک جو ہے وہ اصل میں حیات کا مظہر ہے، وہ اصل میں حیات کو ظاہر کرتی ہے، وہ زندگی کا ظہور ہے. اور دوستو، جب ہم زندگی بخش قوت کو جو تخت پر بیٹھا ہے، جو ایک ہی وقت میں خدائے رحیم بھی ہے اور دوسرے وقت میں وہ خدائے منصف بھی ہے، وہ عدل اور انصاف کا خدا بھی ہے، اس کی خصوصیات کو ہم خدا کے کلام میں دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے اس میں کیا بات تحریر کی گئی کہ لکھا ہے کہ اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور وہاں ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اور یہ بھی انتہائی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے. اور کیا مجھے کوئی یہ بات بتا سکے گا کہ یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ 12 شاگرد اور 12 قبیلوں کے سردار. اور آپ کے خیال میں کیا، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں؟ خدا کے گردا گرد جو ہیں اس کے تخت کے گردا گرد 24 تخت لگے ہوئے ہیں اور 24 بزرگ ان پر تشریف فرما ہے، جو سونے کا تاج جن کے سروں پر رکھا گیا ہے. کون ہو سکتے ہیں یہ؟ دوستو، ان 24 بزرگوں کے بارے میں بہت سارے نظریات جو ہیں وہ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں، اور جس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ 24 بزرگ جو ہیں وہ 12 قبیلوں کے، یعقوب کے 12 بیٹے اور پھر 12 رسول خداوند یسوع مسیح کے. ایک تو یہ نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 24 بزرگ جو ہیں یہ تمام جہانوں کے جتنے مقدسین ہوئے پرانے عہد نامے اور نئے اور رہتی دنیا تک جتنے بھی ہوں گے، ان سب کے نمائندہ لوگ جو ہیں وہ 24 کا عدد جو ہے وہاں پر تشریف فرما ہے. ایک یہ بھی نظریہ ہے. اور پھر ایک نظریہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو کلیسیائیں، جو 7 کلیسیائیں مقدس یوحنا عارف نے دیکھی، شاید یہ ان کے 24 نمائندے ہیں. اور اگر ان 7 کلیسیاؤں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو ان میں سے 24 نمائندے کیسے بن سکتے ہیں کہ اگر 3 نمائندے ایک ایک کلیسیا سے لیے جائیں تو پھر 21 بنتے ہیں، اور اگر 4 نمائندے ایک کلیسیا سے لیے جائے تو 7 چوکا کتنا ہوتا ہے؟ 28. اور پھر بھی وہ 24 کا عدد نہیں ہوتا. غرض کے بائبل مقدس کی انٹرپریٹیشن کرتے وقت ہم کئی دفعہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ حقائق سے بھی ہماری توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اور دوستو، پھر یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے علماء نے یہ بات کہا کہ یہ خاص قسم کے اصل میں فرشتے ہیں جو خدا کے حضور میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، جو کائنات کے انتظام و انسرام میں خدا کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور خدا ان کو حکم دیتا ہے. ہر کبھی ایک اور کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، وہ اپنے تخت سے اڑتے ہیں اور جو خدا ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں. لیکن ایسی کوئی شہادت بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. تو پھر اصل میں یہ 24 بزرگ ہیں کون؟ اور ان 24 بزرگوں کو سمجھنے سے پہلے جو ہے ہمیں ان الفاظ پر بڑا ہی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 24 یعنی 24 ہے. اور دوسری چیز جو ہے ان کو بزرگ کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا نہیں گیا، یعنی وہ روبن نہیں ہے، وہ بنیامین نہیں ہے، وہ یوسف نہیں ہے، وہ اشکار نہیں ہے، وہ جد نہیں ہے، وہ لاوی نہیں ہے، وہ یہودا نہیں ہے، نہ ہی وہ متی ہے، نہ ہی وہ کوئی اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے، بلکہ ان کو صرف جو نام دیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ بزرگ ہیں. 24 بزرگ وہ کہاں بیٹھے ہیں کہ وہ تختوں کے اوپر
ऊपर बैठे हैं, हर शख्स जो है वो अपने तख्त पर विराजमान है, वो खुदा के तख्त के गिर्द हैं। पांचवी बात क्या है कि वो बैठे हुए हैं। छठी बात क्या है कि वो सफेद लिबास में मलबूस हैं। सातवीं बात क्या है कि उनके सरों पर सोने के ताज रखे गए हैं। आठवीं बात क्या है कि वो खुदा को सिजदा करते हैं। और इसके साथ साथ नौवीं बात जो उन बुजुर्गों के हक में मुकाशवा की किताब में दर्ज की गई कि वो गहरे रूहानी भेदों को समझने की सलाहियत भी रखते हैं। और जिस वक्त हम इन 9 बातों के रोशनी में खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करेंगे, तो आज याद रखिए कि मैं हरगिज इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो 12 कबीलों के जो हैं वो 12 कबीलों के जो जिनके नाम पर था, यानी याकूब के 12 बेटे और खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द होंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो इस तरह से हो कि पुराने अहदनामे के 12 बुजुर्ग जो 12 कबीलों पर मबनी है वो और यीशु मसीह के 12 शागिर्द, तो फिर यूहन्ना तो अभी हयात था, वो तो अभी जिंदा है, जो अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा है। और अगर यूहन्ना जब आसमान पर उठाया जाता और उन 12 बुजुर्गों को जो नए अहदनामे के हो सकते थे, क्या वो उनको देखकर फौरी तौर पर पहचान न लेता कि हाँ ये तो मत्ती बैठा है, अरे ये तो खुदा उनका और शागिर्द याकूब है, ये तो शमौन है, अरे ये तो मेरा अपना करीबी याकूब तशरीफ फरमा है। वो कुछ ना कुछ तो किसी का बयान कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उनको नहीं जानता, वो उनके बारे में तहरीर नहीं करता, उनको किसी नाम से मुखातिब नहीं करता। और अगर जब यूहन्ना हयात है तो फिर 24वां तख्त जो है उसको खाली होना चाहिए था, क्योंकि यूहन्ना भी तो मसीह के रसूलों में से एक था। तो जब यूहन्ना वहां पर नहीं बैठा और फिर भी 24 के 24 तख्त जो है वो फिल है, तो फिर इसका मतलब है कि ये पुराने और नए अहदनामे के 12 बुजुर्ग नहीं। तो फिर ये कौन है? आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में पहली तवारीख की किताब उसका 24वां बाब देखिए, और आज इस बात को हम समझेंगे कि ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये कौन थे। पहली तवारीख की किताब उसका 24वां बाब, और अगर आप उसकी पहली 19 आयात को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा। उसको बगौर अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कौन थे जो 24 बुजुर्ग हैं। और बनी हारून के फरीक ये थे कि हारून के बेटे नदब, अबीऊ और अलीएजर और इत्मर, और नदब और अबीऊ अपने बाप से पहले मर गए और उनके औलाद न थी, सो अलीएजर और इत्मर ने कहानत का काम किया। और दाऊद ने अलीएजर के बेटों से सदूक और इत्मर के बेटों में से अखी मलिक को उनकी खिदमत की तरतीब के मुताबिक तकसीम किया। और इत्मर के बेटों से ज्यादा अलीएजर के बेटों में रईस मिले, और इस तरह से वो तकसीम हो गए कि अलीएजर के बेटों में आबाई खानदानों के 16 सरदार थे और इत्मर के बेटों से आबाई खानदानों के मुताबिक 8। और इसी तरह कुरा डालकर और बाहम खल्त मल्त होकर वो तकसीम हुए, क्योंकि मकदिस के सरदार और खुदा के सरदार बनी अलीएजर और बनी इत्मर दोनों में से थे। और फिर अगर आप इन्हीं सारी चीजों को आगे पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको ये दिखाई देगा 10वीं और 11वीं आयत में कि 8वीं अबिया की, 9वीं यशवा की, 10वीं सकानिया की, 11वीं अलियासिब की, 12वीं यकीम की, 13वीं खुफा की, 14वीं यसबाब की, 15वीं बिलजा की, 16वीं अमीर की, 17वीं खजीर की, 18वीं फजीज की, 19वीं फतेहा की, 20वीं यहजकील की, 21वीं याकिन की, 22वीं जमूल की, 23वीं दिलिया की और 24वीं मासिया की। और ये उनकी खिदमत की तरतीब थी ताकि वो खुदा के घर में उस कानून के मुताबिक आए जो उनको उनके बाप हारून की मार्फत वैसा ही मिला जैसा खुदावंद इस्राएल के खुदा ने उसको हुक्म किया था। और मतलब क्या है कि अगर इन तरतीब को हम देखें तो ये 24 दर्जे हैं बेसिकली खुदा के कहानत के खुदा ने जब जमीन पर अपनी कहानत के लिए लावी के कबीले को चुना
तो लावी के कबीले की कहानत जो दी गई, तो उस कहानत में 24 दर्जे रखे गए कि वो कहानत ऐसी कहानत नहीं थी कि जो बस मादर पितर आजाद कहानत हो, कि जिसमें कोई तरतीब नहीं है कि एक सरदार कायन तो बाकी सारा कबीला काहिन बन गया हो। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि इस कहानत का एक प्रॉपर निजाम खुदा ने मुरतब किया। और ये कहानत कौन कर रहा था कि सरदार काहिन जो कबीले से लिया जाता, और उसके बाद जो नीचे की कहानत जो होती थी उसको 24 दर्जों में तकसीम किया गया। और 24 दर्जों की जो तकसीम है उसको आप तवारीख की पहली किताब के 24वें ही बाब में सीख सकते हैं, उसको बगौर पढ़ सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। और असल में खुदा का तख्त जो आसमान पर लगाया गया, और याद रखिए कि जब खुदा मूसा को पहाड़ पर दिखाई दिया और जब उसको जो है वो टैबरनेकल बनाने के लिए खुदा ने कहा, तो उसको क्या कहा कि जो कुछ मैं तुझे आसमान पर से दिखाऊंगा, जिन चीजों को मैं तुझे दिखाऊंगा, तू उनकी नकल जो है हूबहू वैसा ही खैमा इज्तिमा के लिए तैयार करना। और इससे जाहिर क्या होता है कि खुदा का तख्त जहां पर लगा है, जहां पर वो बुजुर्ग नॉन स्टॉप बगैर रुके ये कहते हैं कि कदूस 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 खुदा तू ही तमाम तर इज्जत और कुदरत और तमजीद के लायक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आसमान पर खुदा की इबादत का भी एक निजाम मुरतब है, और वो इबादत का भी एक मुकम्मल इंतजाम है। उस इबादत की एक मुकम्मल तरतीब वहां पर मौजूद है कि जो 24 बुजुर्ग बैठे हैं वो असल में कहानत के उन 24 दर्जों को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये नए और पुराने अहदनामे के 12 बुजुर्ग नहीं है, बल्कि याद रखिए कि ये कहानत की नुमाइंदगी करने वाले जो 24 लोग उस वक्त उन तख्तों पर बैठे हैं, वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं, वो असल में उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जो रास्तबाज हैं, जो मोमिन हैं, जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हैं, जिनके सरों पर ताज रखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सरों पर ताज रखा जाना ये भी इंतहाई अहम बात है कि जो उनके सरों पर सोने के ताज हैं, वो सोने के ताज डायडेम्स नहीं हैं। और डायडेम्स कौन से ताज को कहते हैं? कि डायडेम्स वो ताज है जो बादशाह के सर पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ताज उनके सर पर रखा गया है वो डायडेम नहीं है, बल्कि स्टेफनोस है। और स्टेफनोस किस ताज को कहा जाता है? कि स्टेफनोस उस ताज को कहा जाता है कि जो किसी फाते को किसी चीज पर गलबा पाने के बाद दिया जाता है। और दोस्तों आज खुदा के कलाम को जब हम बारीक बीनी से पढ़ें और उस पर गौर करेंगे, तो याद रखिए कि हर वो ईमानदार जो है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, जो खुदा के कलाम के साथ अपनी जिंदगी जोड़े रखेगा और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो बाल और इब्लीस के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा, और जो हकीकी तौर पर खुदा उनके कलाम से अपना ताल्लुक बनाए रखेगा, उसी के सिर पे स्टेफनोस रखा जाएगा, उसी के सिर पे फतह का ताज रखा जाएगा। और जो फतह का ताज इन 24 बुजुर्गों के सर पर है, वो याद रख लें कि वो डायडेम नहीं है, वो स्टेफनोस है जो उनको फाते होने की सूरत में दिया गया है। और तो भी आसमान पर हमारा सरदार काहिन कौन है? कि आसमान पर सरदार काहिन एक ही है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। और वो खुदावंद यीशु मसीह यानी उस सरदार काहिन की मौजूदगी में जब बाप को सिजदा करते हैं तो अपने ताज उतार कर उसके कदमों में रख देते हैं। और ये है उन 24 बुजुर्गों की असल में और हकीकी तौर पर जो बात उनके हवाले से बयान की जा सकती है, जिस पर हम कलाम की रूह से गौर खोज कर सकते हैं कि कहानत के 24 वो दर्जे हैं जो यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं। और जब हम ये बात कहते हैं कि हम शाही काहिनों का फिरका हो गए हैं, तो भाई शाही काहिनों के फिरके की नुमाइंदगी करने के लिए भी तो लोग वहां पर होंगे।
मूसा को जब खुदा ने बनी इस्राएल की क़ियादत बख्शी और मूसा जब अकेला इंतजाम इंसराम ना चला सका तो उसने कितने लोग मुकर्रर किए? 70। और फिर उसके बाद जो है खुदा के कलाम में ऐसी भी शहादतें मौजूद हैं कि जहाँ पर 24 लोगों को भी, जहाँ पर 12 लोगों को भी मुंतखब किया गया। और इसके साथ साथ जब हम कहानत के हवाले से देखते हैं कि खुदा जो कि मबूद है, खुदा जो कि तमाम तर इबादत का सरचश्मा है, और बाकी तमाम मखलूकात जो कि उसकी आबिद हैं, जो कि उसके सामने इबादत के लिए हाजिर हैं, जिस वक्त वो अपने माबूद के सामने हाजिर होंगे तो वो घुटने नहीं टेकेंगे तो क्या करेंगे? वो अपने सर खम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कोई मखलूक अपने खालिक के सामने अपने सरों पर रखे गए ताज को संभाल सकता है? यकीनन डिफिकल्ट बात है। इसलिए जब वो खुदा की इबादत करते हैं, जब वो खुदा की तारीफ करते हैं, तो वो फतह का ताज जो उनके सरों पर सजाया गया है, वो फतह का ताज उतार कर वो अपने खालिक के कदमों में रखते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो टाइम काफी हो चुका और मैं इसको खत्म करूंगा आज यहाँ पर। और लिखा क्या है कि उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। 7 चिरागदान यूहन्ना पहले भी देख चुका है। और उनके हवाले से क्या लिखा है? ये खुदा की 7 रूहें। भाई हम तो आज तक खुदा की एक ही रूह को, जिसको हम रूह कुद्स कहते हैं, उसको ही जानते और उसको ही पहचानते रहे हैं। तो ये खुदा की 7 रूहें कहां से आ गई? ये खुदा की 7 रूहें कौन सी हैं? और किन्होंने, कौन इन 7 रूहों को पहचान सकता है? और 7 का आदत हम सब जानते हैं, तमाम मसीही जानते हैं कि कामियत का आदत है। लेकिन 7 चिराग जो खुदा के तख्त के सामने पड़े हैं, ये खुदा की 7 रूहें। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुकाशफा कहता है। और 7 रूहें कौन सी? क्या किसी को इल्म है कि 7 रूहें खुदा की कौन सी? आइए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। और यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। समझ रहे हैं कि ये 7 खसूसियात हैं असल में खुदाए रूहुल कुद्स की। ये 7 खसूसियात हैं खुदा के रूह की कि जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना आरिफ जो है वो खुदा के सामने उन 7 जलते हुए चिरागों को देखता है, जिसके बारे में ये तहरीर किया गया कि वो खुदा की 7 रूहें हैं जो उसके तख्त के सामने पड़ी हैं, जो उसके तख्त के सामने रखी गई हैं। और याद रखिए कि इन 7 रूहों के हवाले से, और जो कामलियत की रूह है जिसको हम रूहुल कुद्स कहते हैं, और उस रूहुल कुद्स के वसीले से दुनिया की एक ही शख्सियत आज तक तजस्सुम हुई और वो मेरा और आपका निजात देहिंदा यीशु मसीह है, कि जिसके हवाले से ये बात बयान की गई है कि खुदा का रूह जो है उसके वसीले से वो तख्लीक होता है, और जिस पर खुदा का रूह ठहरा कबूतर की मानिंद, और आसमान से आवाज क्या आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर शागिर्द क्या सुनते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और दोस्तों आज इस बात को समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़े इस्तेकाक की बात है कि आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर खुदा के रूहुल कुद्स की वो 7 खसूसियात जो कि कामलियत की खसूसियात हैं वो उसके ऊपर ठहरी हुई हैं। ये भाई बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुकद्दस यशायाह नबी आज से 2700 साल पहले बयान कर चुका है। और क्या कहता है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदा की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। हालेलुया। और ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है कि उस पर खुदा
ठहरी हुई है कि जो यूहन्ना आरिफ को ये दावत देता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और जहाँ वो खुद है वहाँ यकीनन वो अपने लोगों को ले जाने की कुदरत भी रखता है। जहाँ वो खुद है वहाँ पर उसके लोग भी हैं। इसलिए तो उसने कहा कि जो कुछ बाप मेरे हाथ में देता है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और दोस्तों, जब अगर हम आज हमें ये यकीन है कि हम उस मसलहत और खिद की रूह से भरे हुए इख्तियार और कुदरत की रूह से मुनज़्ज़म खुदावंद के हाथों में है, तो फिर आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ईमान है कि अगर हमें यकीन है कि हम आज मसीह खुदावंद के हाथों में मौजूद हैं, आज हम उसकी सरबराही में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर उन लोगों को है जिन्होंने आज तक यीशु के रूहुल कुद्स को नहीं पहचाना, जिन्होंने आज तक यीशु के जलाल को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की, जिन्होंने हकीकत में खुदा के कलाम से दूर रहकर जिंदगी बसर की, जिन पर खुदा की हिकमत, मार्फत, खिद और मसलहत की और उसके खौफ की रूह ज़ाहिर नहीं हुई, उन लोगों के लिए आज लम्हे फिक्रिया जरूर है। लेकिन हर वो शख्स जिसने मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया है, उसके लिए आज भी आसमान के दरवाजे खोले हुए हैं, आज भी आसमान के दरीचे खोल दिए गए हैं। आज भी खुदा बहुत से लोगों पर अपने मुकाशफात को जाहिर करता है, उनको खुदा की हिकमत उनको सिखाता है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखिए कि जब तक हम इन मिशनों के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम कभी खुदा के कलाम को हकीकी मायनों में नहीं समझ सकेंगे। ये जी चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, ये पेंटिकॉस्टल है, ये उसका प्रेस्बिटेरियन चर्च का है, ये AARP का है, ये बैप्टिस्ट है, ये फलां है, ये फलां है। और हर शख्स आज खुदा के कलाम पर गौर करने की बजाय अपनी मिशन के एजेंडे को फरोग देने में ज्यादा फख्र महसूस करता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब हम खुदा के सामने हाजिर किए जाएंगे, तो तब खुदा हमसे ये नहीं पूछेगा कि सनाबिका का तू चर्च ऑफ पाकिस्तान का सी, तेरी मिशन की गंदी सी, तू प्रेस्बिटेरियन था, तेरी आइडियोलॉजी क्या कहती थी, तू रोमन कैथोलिक था, तू बैप्टिस्ट था, तू पेंटिकॉस्टल था, हाँ जी आपकी डॉक्ट्राइन्स क्या है। खुदा पूछेगा कि क्या तूने मेरी हकमियत पर ईमान रखा था कि नहीं। खुदा पूछेगा कि क्या तूने मेरे बेटे के इख्तियार और उसकी कुदरत और मेरे पाक रूह पर ईमान रखा था कि नहीं। और उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा, ये हम सबों के लिए सोचने का मुकाम है। आइडियोलॉजी और डॉक्ट्राइन वही है जो खुदा के कलाम में दर्ज है, इसके अलावा और कोई आइडियोलॉजी और कोई ऐसी डॉक्ट्राइन नहीं है कि जिसको हम कबूल कर सकें। और आज मेरे भाई मेरी बहन इस चीज को समझें और इस पर गौर करें कि खुदावंद आज मुझे और आपको किन चीजों का नजारा करवा रहा है। और उसने ये नजारा 2000 साल कब यूहन्ना आरिफ को करवाया, और आज वो हमें भी उसी तरह का नजारा करवाने के लिए रूहों को हमारी वो तैयार कर रहा है। ये ऊंचा क्यों गाता है, वो ऊंची दुआ क्यों करती है, ये गैर जुबान क्यों बोलता है, वो खुदा के रूह के हवाले से क्यों हाथ रखकर दुआ करता है। भाई कब तक हम इन्हीं मुगल्लजात में उलझे रहेंगे। क्या पता खुदा ने किसको क्या बरकत दी है, हम कौन हैं कि दुनिया की अदालत कर सकें। आइए रूहानी तजर्बात हासिल करें। जब तक हमें अपने अंदर रूहानी तजर्बात नहीं होंगे, हम खुदा के कलाम को कभी सीख ही नहीं सकेंगे। आज मेरे भाई मेरी बहन, इस सारे आज sermon को मैं आज यहाँ पर खत्म करूंगा इस हवाले से कि मेरे दोस्तों, कि खुदा का जलाल है जो मुकद्दस यूहन्ना आरिफ ने हम तक पहुंचाया है। फ्राइडे की इबादत में हम इसका दूसरा हिस्सा उस पर गौर करेंगे कि हकीकत में वो जो आसमान पर इबादत और खुदा की वर्शिप, उसकी ताजीम, उसकी तारीफ है, वो जो जानदार हैं वहां पर, उनका क्या मकसद है। और आज हमने सीखा कि खुदा के तख्त के बारे में, आज हमने सीखा
کہ جو کچھ اس کی شبیہ سی معلوم ہوئی ہے یوحنا کو جس کا بیان اس نے کیا، آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے اس کے تخت سے آوازیں اور گرجیں جو کہ اس کے نمائندگی کرتی ہیں اس کی پریزنس کی، اور پھر آج ہم نے سیکھا کہ خدا کے تخت کے سامنے جو 24 بزرگ اور 7 چراغ جل رہے ہیں ان کے معنی کیا ہے۔ اور جمعے کی شام کی عبادت میں ہم باقی جو ماندہ آیات ہیں جس میں 4 جانداروں کا بیان ہے جو مختلف اشکال کے ہیں، جو جن کے پر ہیں، جن کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر کے باقی حالات جو ورشپ خدا کی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم غور کریں گے۔ اور جو لوگ ورشپ کرنے کو اہم نہیں سمجھتے، جو خدا کی حمد و ثنا کرنے کو اہم نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ 24 بزرگ جو نان سٹاپ کیا کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند ہمارا خدا ہی تمام تر عزت طاقت دولت اور حشمت کے انہوں کی سیاپا پہ آگے وہ 24 اٹھتے بیٹھ کے خدا کو تمجید کر دے گا۔ ان فرشتوں کو یاد کریں کہ جو ہر لمحہ خدا کی تمجید کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ہم چرچز میں کوئی تھوڑا بلند آواز سے کوئی زوردار تالی کے ساتھ گا لے، کوئی ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا کر لے تو ساری کلیسیا آرام ہو کے دیکھنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی خدا کے کلام کو پڑھیں تو صحیح۔ اگر ہمارے پرانے آباء و اجداد نے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ خدا کے جتنا خدا سے محبت کریں گے، جتنا اس کے نزدیک جائیں گے، وہ اتنی ہی شفقت آپ پر کرتے ہیں۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ منہ چپ کر کے کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے سے خدا کی تمجید نہیں ہوتی۔ ایک ہی بات ہم نے آج تک اپنائی ہے کہ انہوں نے کہا جی کوٹری میں جا اور پوشیدگی میں دعا کر۔ ارے بھائی وہ آپ کی پرسنل میڈیٹیشن کی بات کرتا ہے۔ داؤد سب سے کہی ایک وجہ سی کہ وہ پارلن کو نچلا پھرتا سی خدا دے اہل دے صندوق لے کے، ان کی مشکل پہ مریم جو اس کی بہن تھی موسیٰ کی، اس کو کیا سیاپا پڑا تھا کہ وہ ہاتھ میں دف لے کر اور ناچتی ہوئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ خدا کی تمجید کرتی ہوئی نکلتی۔ ناچنا تو بہت دور کی بات ہے، خاص طور پر چرچ پاکستان میں تعلیم واجہ ہوئے گرجے سے تو مصیبت پہ آئی۔ آج ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت، آج ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ بس کیجئے وہ نام نہاد قسم کے اعتراضات کہ ہے کہ ہو گیا ہو کیوں ہو گیا، اور یہ دیکھیں کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد زمین پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ توبہ کیجئے، ایمان لائیے، خدا کی حاکمیت کو قبول کیجئے، خدا بنا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم